Today we will start the Laplace transformation. We did this Bessel function for integers, Bessel function for real numbers, and we also checked out how we can plot them. Bessel function of first kind J0 and J1. Okay, these are all damped functions because as the time goes by on the x-axis, they keep decreasing in their amplitudes. And we basically, the basic concept of solving Bessel function was to solve a second order ordinary differential equation using the power series method. Okay, that's why you see this summation sign over here. Okay, this summation sign says that it's a power series solution. And we have discussed in power series that how you can uh, transform any function, mathematical function, into power series. Okay, so that power series method we have already discussed. So Bessel is a solution for those ordinary differential equation. It means now you have a differential equation of second order, third order, but your solution is just a series. As here you can see J1x, 13 number equation. J1x is the summation of M0 to infinity. So M is the counter. Okay, X is the variable on which you are solving it. Okay, and it gives you a plain solution. Okay, so if you are looking for any particular solution of a differential equation second order, then you can easily put the values of x, because you see on the right hand side of this right hand side, you see you don't have any other variable, just x, and this is also the argument of this. You only have j1x. Okay, so this is how it works. Similarly, if we say in the zero order, this was the first order. So in zero order, you have this. You can appreciate the difference between the two. This one is for zero order. So in zero order and in first order, the difference is that here you have all the even powers. Since zero is also even itself, because you have 0, 2, 4, 6, 8, so on and so forth. So 0 is even, so you will have all the even powers, x square, x4, x6, and it's signed with alternate minus, plus, and so on and so forth. While in odd power, that is 1, you have 1 not written over here, it means it's plus 1. Okay, then you have 3, 5, 7, and so on, 9, 11, 13, and onwards, and still you have plus minus equals. Okay, so it says here it is also written as x to the power 0. But what is the value of x to the power 0, or anything raised to the power 0 becomes what? 1. Okay, so you don't see x over here written. Okay, so x is not apparent in this side, but you have just 1 appearing. Okay, so this is how you can easily remember the two different types. Once you have J0, once you have J1, it means you can get all the other Bessel functions. Okay, for any order, order 2, order 3, order 4, order 5. Okay, so it all comes down to these two basic, zero order and first order. Okay, so this we discussed in the last. Then we discussed the properties of Bessel after gamma function. These are the four properties. Okay,
2 for the simple algebraic expression and 2 for their summation. Okay, so when you take the derivative of Bessel, it just reduces its power. Okay, new derivative, so you will have j nu minus 1. If it's a third order, then you will get second order. The second order is nothing but the derivative of third order. And same we do in the plane derivatives also. अगर आपके पास x क्यूब है तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या बनेगा 3x स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब x स्क्वायर जो है वो क्या है, एक रिड्यूस पावर है ना x क्यूब की, और इसी तरह से आप किसी भी पॉलिनोमियल पे अप्लाई करते हैं। तो बेसल फंक्शन में भी कुछ इसी तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर वो काम उसकी ऑर्डर के साथ हो रहा है। अब जैसे यहाँ पर j न्यू ऑर्डर है, ठीक है ना, न्यू कुड बी 7 फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसके राइट साइड पर देखें तो ये न्यू माइनस 1 हो गया है, यानी कि अगर ये 7 था और आपने डेरिवेटिव लिया तो ये 6 हो गया, ठीक है। दिस हाउ इट वर्क्स इन डेरिवेटिव्स। कोफिशिएंट पे कोई असर नहीं पड़ता, वो एज इट इज इसके साथ रहेगा। हाँ, अगर ये नेगेटिव हो जाए कोफिशिएंट तो फिर न्यू जो है वो 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर ये माइनस में आ जाए, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इट्स इन माइनस, तो उससे फर्क क्या पड़ा कि यहाँ पर ये माइनस था जब ये प्लस था, अब ये माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये अपोजिट चलेंगे एक तरह से। तो अब आप जे न्यू का डेरिवेटिव ले, पहले आपने जे न्यू का डेरिवेटिव किया था तो वो 1 माइनस हो गया था, अब जे न्यू का डेरिवेटिव होगा तो ये 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, न्यू प्लस 1 हो गया ये, ठीक है। तो ये तो इनके डेरिवेटिव्स थे बेसल के। फिर रिकरेंस लिमिट्स, डेरिवेटिव्स है जब बेसल के, वो रिकरेंस इन दो लिमिट्स को भी सेटिस्फाई करते हैं कि प्रीवियस और नेक्स्ट दो ऑर्डर्स को आप जमा करें, ठीक है, प्रीवियस और नेक्स्ट, मतलब एक चीज होती है टुडे, एक चीज होती है यस्टरडे और एक चीज होती है टुमारो, ठीक है। तो अब आप अगर इसको देख रहे हैं, सी इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ 21C की, अगर आप इसको देख रहे हैं तो इसमें आप यूँ देख लें कि आपके पास प्रीवियस न्यू माइनस 1 यानी कि प्रीवियस डिग्री है और न्यू प्लस 1 नेक्स्ट डिग्री है, तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास टुडेज डिग्री विल गेट, ठीक है ना। ये था न्यू माइनस 1, फॉर एग्जाम्पल ये 6 है, माइनस करने से, ठीक है, ये आया 6, यानी कि आपके पास यहाँ क्या था 7 माइनस 1 6, 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो इसका मतलब कि न्यू क्या है 7 है ना, तो 7 टू ज़ा 14 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और जे न्यू जे 7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और x से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कब होगा जब आप प्लस करेंगे। सिमिलरली अगर यही काम आप माइनस में कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा कि जो करंट ऑर्डर है न्यू, उसका डेरिवेटिव होगा और मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब ये सब चीजें खत्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देखें ये सब खत्म हो गया, यानी कि म्यू अपॉन, अगर मैं लास्ट को इंटू करूँ तो आपके पास सिर्फ ये बची, ये चीज है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और क्या आ गया 2 आ गया, 2 आ गया और करंट ऑर्डर का डेरिवेटिव आ गया। अच्छा, ये सब कुछ कब होगा जब ये क्या हो नेगेटिव हो। दिस इज हाउ दीज टू प्रॉपर्टीज वर्क्स, ठीक है। तो ये चार इसके रिकरेंस रिलेशन थे बेसल फंक्शन के जो हमें इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है।
फिर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इसके अंदर हम जो है वो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की मैंने बात की थी लास्ट टाइम, तो जिसकी प्रॉपर्टीज भी बताई थी। Laplace transform method solves differential equation and corresponding initial boundary value. ठीक है. Problem. The process of solution consists of 3 main steps. ये याद रखने वाले हैं. The given hand problem is transformed into a simple equation. मतलब आपको जो डेरिवेटिव इक्वेशन गिवन है, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, उसको आप एक सब्सिडरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे. पहला स्टेप तो ये. सब्सिडरी इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर डेरिवेटिव्स नहीं आ रहे होते. ठीक है. उसमें क्या होगा, डेरिवेटिव्स नहीं आएंगे, डेरिवेटिव्स के इक्विवेलेंट आ जाएंगे. ऐसे सिंबल्स आ जाएंगे कि जो डेरिवेटिव्स के इक्विवेलेंट होंगे. स्टेप 2, सब्सिडरी इक्वेशन इज सॉल्व्ड बाय प्योरली अलजेब्रिक मैनिपुलेशन. यानी कि आपने फर्ज कर ले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपके पास सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, यानी कि आपके पास क्या थी, ओडीई. ठीक है ना, नॉन लीनियर ओडीई थी आपके पास सेकंड ऑर्डर. अब जब आपने उसको सब्सिडरी इक्वेशन में कन्वर्ट किया, तब वो सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो गए एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, हाई स्कूल से हम ये करते हुए आ रहे हैं. कैसे सॉल्व करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है ना. हाँ, गुड, वेरी गुड. उसको क्या कहते हैं इस मेथड को, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है ना, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले सॉल्व करते हैं. अच्छा, अब आप शुरू कहाँ से हुए थे, सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से, और आप सॉल्व कैसे कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से. तो ये तो अलजेब्रिक मैनिपुलेशन हुई ना सारी. आपने डेरिवेटिव्स तो कोई नहीं लगाए, ना डेरिवेटिव्स के रूल, ना u इंटू वी लगाया, ना u अपॉन वी लगाया, बल्कि आपने एक सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करा एक सब्सिडरी इक्वेशन के अंदर. ठीक है. और अब आप उस सब्सिडरी इक्वेशन को सिंपली क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं उसके अपने मेथड्स के जरिए से. मेथड्स के जरिए से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है थर्ड ऑर्डर हो तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर हो तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी. क्यूबिक इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन हो या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो, उनको आप उन्हीं के मेथड से सॉल्व करेंगे. ठीक है ना. तो आप सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को पहले अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर उन कन्वर्जन्स को अलजेब्रिक मैनिपुलेशन से. ठीक है ना, यहाँ पर आप देखें कि ये मैंने क्या मेंशन किया, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन. अलजेब्रिक मैनिपुलेशन का मतलब हुआ कि आप उन इक्वेशंस को अलजेब्रा के मेथड से सॉल्व कर रहे हैं. एक मिनट जरा और
तो हम उसको अलजेब्रिक मैनिपुलेशन से सॉल्व करेंगे। क्यूबिक इक्वेशन होगी तो क्यूबिक, एक्सपोनेंशियल है तो उसको उसके मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये आपका सेकंड स्टेप होगा, ठीक है। थर्ड स्टेप, solution of the subsidiary equation is transformed back to obtain the solution of the given problem, ठीक है। यानी कि आपने जो भी सोल्यूशन निकाल ली है, सोल्यूशन निकाल लेने के बाद उसको फिर आपको जाहिर है ट्रांसफॉर्म करना होगा, क्योंकि आपको बेसिकली तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी थी ना। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन थोड़ी सॉल्व करने बैठे थे, हम तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने बैठे थे। तो लिहाजा हमें उसी का आंसर भी चाहिए। तो जो हमारे पास स्टेप 2 में आंसर आया था उसको हमें वापस स्टेप 1 में मतलब वापस ओरिजिनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो हम सोल्यूशन है उसको वापस कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो अब इन 3 स्टेप्स पे देखें, आपने किसी जगह भी जो आपके पास मेथड्स थे, एक तो था u इंटू वी, ठीक है, और इसके अलावा है u अपॉन v, ठीक है। इसके अलावा बाय पार्ट्स का मेथड है, इसके अलावा सब्स्टिट्यूशंस का मेथड है, एक्सपोनेंशियल के डेरिवेटिव्स हैं, साइन कोसाइन के डेरिवेटिव्स है, कोई आपने अप्लाई नहीं करा, बल्कि आपने उसको सिंपल क्वाड्रेटिक लीनियर और इस किस्म की इक्वेशन के जरिए से सॉल्व करके आंसर निकाला और वापस कन्वर्ट कर दिया। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में ये काम बहुत आसानी से हो जाते हैं, इसलिए इसको ट्रांसफॉर्म्स कहा जाता है कि आप ओरिजिनल इक्वेशंस को पहले लैप्लास में कन्वर्ट करते हैं, स्टेप 1। स्टेप 2, जो भी लैप्लास बन जाएगा आप उसको सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन आ जाएगा। स्टेप 3 में उस सोल्यूशन को वापस ओडीई के सोल्यूशन में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स हमारे पास होंगे हमेशा। This method has the advantage that it solves problem directly, initial value problem without first determining the general solution, ठीक है, and non-homogeneous differential equation without solving the corresponding homogeneous equation, ठीक है ना। तो basically you can say that we have these 3 different advantages of solving it using this method. The first advantage was problem was solved directly. Initial value problem without first determining the general solution. क्योंकि जब IVP हम सॉल्व करते थे स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर, तो हम क्या करते थे कि पहले आप एक सोल्यूशन निकाल लेते थे। पीछे भी हमने किया था कि आपने YP निकाल लिया और YH निकाल लिया, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल लिया और होमोजेनियस सोल्यूशन निकाल लिया। अब उसके अंदर आप इनिशियल वैल्यू रखते हैं तो फिर आपके पास एग्जैक्ट सोल्यूशन जो है उस ODE का आ जाता है। तो इसमें ऐसा कोई सिलसिला नहीं कि आपको जनरल सोल्यूशन की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही बगैर जनरल सोल्यूशन के आंसर निकाल लेते हैं। फिर अगला एडवांटेज आपके पास क्या है, एंड नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस विदाउट फर्स्ट सॉल्विंग द करस्पॉन्डिंग होमोजेनियस इक्वेशंस। क्या आप क्या करें, आप होमोजेनियस करे बगैर नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हम पीछे करके आ रहे हैं कि जब आपको नॉन होमोजेनियस यानी कि राइट हैंड साइड नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप उसे सॉल्व करते वक्त क्या करते थे कि आप उससे पहले होमोजेनियस सोल्यूशन निकालते थे, YH निकालते थे होमोजेनियस सोल्यूशन, ठीक है, फिर उसको कन्वर्ट करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको वैसा करने की जरूरत नहीं होगी, पहले नॉन होमोजेनियस पहले होमोजेनियस निकालते थे फिर नॉन होमोजेनियस के ऊपर जाते थे, ठीक है ना। तो ये आपके पास डायरेक्ट बेनिफिट्स है टू यूज लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। इससे अमूमन ये ज्यादातर यूज किया जाता है जब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर की हो, तो जिनको सॉल्व करना अपने
जिसे कहते हैं ना हम एनालिटिकल मेथड से मुश्किल हो तो फिर हम उसके अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन जो है लैपलास से निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर लैपलास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स ट्रांसफॉर्म एंड लीनियरिटी शिफ्टिंग। अब लैपलास तो हमने देखा क्या होती है, इनवर्स ट्रांसफॉर्म क्या होती है कि जिस तरह स्टेप 1 में होता है ना आपके पास कि आप स्टैंडर्ड ओडी को कन्वर्ट करते हैं सब्सिडरी में, ठीक है। इसके लिए तो आपको इसकी जरूरत है, ठीक है। फिर आपने सब्सिडरी का सॉल्व करके सोल्यूशन निकाल लिया, फिर सोल्यूशन को ट्रांसफॉर्म बैक टू ऑब्टेन द सोल्यूशन, उसके लिए आपको इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म लैपलास की जरूरत कब है, जब आप स्टेप 1 में, इनवर्स ट्रांसफॉर्म की जरूरत कब है, जब आप स्टेप 3 पर आ जाते हैं, ठीक है ना। और लीनियरिटी शिफ्टिंग मतलब लीनियरिटी को जिस तरह से आपको जो प्रॉब्लम गिवन है, ज़ाहिर है dy by dx होगी ना कोई प्रॉब्लम, तो बेसिकली वो किस में गिवन है, वो आपको टाइम डोमेन में गिवन होती है, उसको आप शिफ्ट करके एस डोमेन में ले आते हैं, स्पेस डोमेन में ले आते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड लीनियरिटी शिफ्टिंग, इसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। अच्छा अच्छा, अब इसको देखते हैं जरा आगे। एफ टी be a given function, कोई भी फंक्शन है टाइम डोमेन में, be given function that is defined for all time positive, we multiply ft by e to the power st, ठीक है ना। अगर आपको ये नजर नहीं आ रहा तो इसको मैं थोड़ा सा जो है बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। वो नेगेटिव एसटी नहीं है? जी नेगेटिव ही है, अब नजर आया आपको नेगेटिव? यस सर। ठीक है, विजिबल है ये नेगेटिव एस टी। यस सर। So we multiply ft means any function टाइम डोमेन में by e to the power minus st, ठीक है, माइनस एस टी। अब s जो है वो न्यू डोमेन है और t जो है वो ओल्ड डोमेन है, स्पेस डोमेन में हम जा रहे हैं टाइम डोमेन से, एंड इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t फ्रॉम 0 to infinity. Then if the resulting integral exists, then that is has some finite value, it is a function of s, say fs, ठीक है ना, स्पेस डोमेन। f of s is equals to इंटीग्रल 0 to infinity f of t वो हमारा वाला फंक्शन है, ठीक है ना, e to the power minus st dt। अच्छा, अब यहाँ जो मैंने वर्ड यूज किया हुआ है एक्सिस्ट का, सो इट मीन्स कि आपके पास ये करने के बाद ये पूरा काम करने के बाद कोई आंसर अगर आ जाए, क्योंकि आपको पता है जब आप इंटीग्रेट कर रहे होते हैं किसी भी फंक्शन को तो इससे मुराद ये होती है कि आपके पास कोई एरिया आएगा, और अगर वो इंटीग्रेट नहीं हो सकता या उसमें कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये अनबाउंडेड सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो अगर कोई आपके पास फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, माइनस पे हो, प्लस पे हो, रियल हो, इंटीजर हो, किसी भी डोमेन में हो, लेकिन एक वैल्यू आनी चाहिए, तो उसको उसका मतलब होगा इंटीग्रल एग्जिस्ट, ठीक है। अगर नहीं आती तो एग्जिस्ट नहीं करता। So this function of fs of the variable is called the Laplace transform of the original function ft, ठीक है। तो अब ये कैपिटल F जो लिखा हुआ है ये ट्रांसफॉर्म्ड है स्मॉल f का,
तो फर्क ये है कि ना सिर्फ स्मॉल और कैपिटल एफ है, बल्कि वो टाइम डोमेन से स्पेस डोमेन में जा चुका है। ठीक है, स्मॉल एफ जो था वो किस में था, वो टाइम डोमेन में था, जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था। अब जो ट्रांसफॉर्म्ड आ रहा है, एक तो वो कैपिटल एफ है और दूसरा वो स्पेस डोमेन में आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों में तब्दीली आ चुकी है, और इसके लिए इसको इस डोमेन से इस डोमेन में ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई एफ टी बाय दिस। ठीक है, और ये आप किसी भी फंक्शन के साथ कर सकते हैं, और इंटीग्रेट कर मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेट किया जाएगा 0 to infinity। तो अब इसको आप लैपलास ट्रांसफॉर्म कह सकते हैं कि अब ये हो जाने के बाद जो कैपिटल एफ एस आ रहा है, ये लैपलास ट्रांसफॉर्म है ओरिजिनल फंक्शन स्मॉल एफ टी का। आई विल डिनोटेड बाय, इस तरह का एल लिखा जाएगा और फिर उसके आगे एफ आ जाएगा, और एफ जो है ये इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला एफ है ये। ठीक है, ये वाला एफ जो है वो यहाँ आ गया। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि दिस एफ इज नाउ ओवर हियर। ठीक है, यानी कि ये जो है किसी भी डोमेन में हो सकता है। तो अब इसको आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी कि अब आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि दिस थिंग इज इक्वल्स टू एल ऑफ एफ। ठीक है, तो ये पूरी चीज जो है, ये पूरी चीज, ये भी और ये भी। ठीक है, ये दोनों चीजें किसके बराबर हो गई, एल ऑफ एफ के बराबर हो गई। तो अब इसे कह सकते हैं 10 एफ ऑफ एस, यानी कि ये लैपलास के बराबर हो गया। आप कैपिटल एफ एस लिखते हैं या एल इस तरह से बना के एफ लिखते, दोनों बात बराबर है। फर्क सिर्फ ये है कि वहां पर आपने स्पेस डोमेन लिया हुआ है कैपिटल एस में, और एल के अंदर आपने फंक्शन डोमेन लिया हुआ है। ठीक है ना, यानी कि फंक्शन का डोमेन आपको पता है, एक्स भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है। ठीक है ना, तो फंक्शन के तो डिफरेंट डोमेन्स हो सकते हैं, एम भी हो सकता है, जे भी हो सकता है, फंक्शन का कोई भी डोमेन आ सकता है। ठीक है, तो ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन 1 है। अच्छा, अगर बीच में से डिस्कनेक्ट हो जाए तो डो नॉट पैनिक, इट विल रिकनेक्ट ऑटोमेटिकली। ठीक है, डिस्कनेक्ट का मतलब ये नहीं होगा कि क्लास इज ओवर। The original function depends on t, and new functions f on s। मैं देख रहा हूँ लोग काफी देर देर में साइन इन कर रहे हैं, तो मैं कोशिश क्या करें कि टाइम जब क्लास शुरू हो जाए तो आप ज्वाइन कर लें as soon as possible so you do not miss the content। ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन एस टी पे डिपेंड कर रहा है, और जो ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन है वो एस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, एफ टी इन वन इट्स कॉल्ड द इनवर्स फंक्शन और इनवर्स ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है, एंड विल बी डिनोटेड बाय अब यहाँ पर देखें आप, ये एल के ऊपर -1 आ गया।
ठीक है ना, l की पावर -1 टू रिप्रेजेंट दिस इनवर्स। इस इनवर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर l जो है उसके ऊपर पावर जो है वो -1 हो जाएगी, ताकि ये रिप्रेजेंट हो जाए। मतलब हम इस तरीके से बनाएंगे, तो ये आपका लैप्लास इनवर्स हो गया, ठीक है। और यहाँ जब आप लैप्लास इनवर्स लिखेंगे तो अंदर ये वाला एफ नहीं आएगा, ठीक है, इसका ख्याल रखिएगा, अंदर ये वाला एफ आएगा। ठीक है, उसकी वजह क्या है? देखिए, आप जब ये वाला लैप्लास लगाते हैं इस बार, ठीक है, यानी कि आप इसको कह रहे हैं ये वाला लैप्लास, तो इसका जो डोमेन आता है अंदर वो आता है ओरिजिनल फंक्शन, ठीक है। ये क्या है? ओरिजिनल फंक्शन है एफ, जो आपने यहाँ लिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जब आप इनवर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है, तो अभी जैसा कि हमने देखा था कि इनवर्स कब लग रहा होता है कि जब आपको ओरिजिनल फंक्शन वापस चाहिए होता है। लिहाजा आप किसी डिफरेंट चीज के ऊपर लगाएंगे ना और फंक्शन, तो आप जब तक किसी FBI कौन है? इस किस्म के नामों से परहेज करें, ठीक है। तो बेहतर ये कि आप अपना नाम पहले सही करें कि हु आर यू अ लेजिटिमेट member of this group to attend this class or not. तो ये एल ऑफ एफ जो था, आपने लैप्लास लगाया फंक्शन पर जिसको आपने कन्वर्ट करना है, इनवर्स आप लगाएंगे उस फंक्शन पर जो कन्वर्टेड हुआ है, ठीक है ना। यानी कि लैप्लास इनवर्स होगा वो लैप्लास पर ही लग सकता है, किसी और फंक्शन पर नहीं लग सकता, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इनवर्स होगा वो कैपिटल एफ पे लगेगा, और जो स्टैंडर्ड लैप्लास है वो स्मॉल एफ पे लगेगा, यानी ओरिजिनल फंक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर आपने क्या लिखा है? कैपिटल एफ, इसका डोमेन क्या है? एस है, और स्मॉल एफ का डोमेन क्या होता है? टी होता है। टी हो या कोई और हो, ठीक है ना, तो इसलिए दोनों में फर्क है, इस बात का ख्याल रखना जरूरी है। ये जो पूरी चीज है ये ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज हो रही है कि आपका जो ओरिजिनल फंक्शन था टाइम डोमेन में वो किस पे चला गया? एस डोमेन में, स्पेस डोमेन में चला गया, कैपिटल एफ के, ठीक है। तो अब इसको वापस एफ पे लाने के लिए इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, इस पूरी चीज को अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो उसके लिए फिर मैं क्या करूंगा? इनवर्स लगाऊंगा, ठीक है। अब जब इस पूरे के ऊपर इनवर्स लगेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आपका ओरिजिनल फंक्शन वापस आ जाएगा टाइम डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से ये किया गया है कि L of -1 capital F, this thing that we shall write, इसको अब ऐसे लिखेंगे, तो आप देखें यहाँ ओरिजिनल फंक्शन वापस आ गया, f of t is equals L inverse f, ठीक है ना। यही वाली चीज आपने लिखी है यहाँ पर, यही पूरी चीज लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो this you can say completes the third step, where to convert the solution obtained in step 2 by
simple algebraic manipulation, you convert that into the original. अब जो आपने सब्सिडियरी इक्वेशन बनाई थी वो बेसिकली लैप्लास इक्वेशन थी, ठीक है। अब आपसे तो लैप्लास नहीं पूछा था ना, आपसे तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन मांगा था, तो आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाई लैप्लास की, तो लिहाजा जब ट्रांसफॉर्मेशन लगा के सोल्यूशन उस ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन का निकाल लिया, अब उसको वापस लेकर भी आना है स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर, तो वहां पर फिर हम ये लैप्लास को यूज करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से कंप्यूटर सिमुलेशंस के जरिए से आंसर जो आते हैं वो थोड़े से लेंदी होते हैं, लेकिन यहाँ हम उनको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इवन कुछ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स के अंदर लैप्लास के मॉड्यूल्स या प्रोग्राम्स या शॉर्टकट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। इस तरह पाइथन और मैटलैब में भी आपने देखा है कुछ चीज़ें रिजर्व्ड होती हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ें रिजर्व्ड इसलिए होती है कि वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, उनको आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप देखने की भी ज़रूरत नहीं है, छोड़ दें, पड़ा रहे, सालों पड़ा रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम सिंबल का ख्याल रखते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसको अप्लाई कैसे करेंगे। एग्जाम्पल 1 देखते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। f of t is 1 where t is any positive, find f of s। अब यहाँ देखें, यहाँ f of t दिया हुआ है और यहाँ पर f of s पूछा है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ आपने सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अभी आप। अभी आप ये देख रहे हैं कि लैप्लास लगती किस तरह से है, ठीक है ना। अभी ये इनवर्स और सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप वाले चक्कर नहीं कर रहे हैं आप अभी सिर्फ आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। So this you have from 1 we obtain by integration, ठीक है ना। यानी कि ये जो f of t था यहाँ पे, इसकी जगह आप क्या रख देंगे 1, तो क्या बचेगा इंटीग्रल 0 to infinity e to the power minus st बचेगा, क्योंकि f of t की जगह तो 1 आ गया ना, ठीक है ना। इसकी जगह तो आपने क्या लिख दिया 1 लिख दिया, तो 1 into e to the power minus s of t, ठीक है। तो इंटीग्रल के अंदर एक्सपोनेंशियल आ रहा है और साथ में dt भी दिया हुआ है, तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है, व्हाट्स द इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल, 1 upon n